بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی بی ہاجرہ، حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، حج کے جتنے بھی رکن ہیں، ان ساروں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، حضرت بی بی ہاجرہ کے ساتھ ہے۔ آب زمزم جو ہم پیتے ہیں، جس کی خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ ہزاروں سال اس کو اگر کسی جگہ پر بند کر کے رکھ دو یا ویسے کسی جگہ پر رکھ دو، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کا کلر تبدیل نہیں ہوتا۔ باقی پانی خراب ہو جاتے ہیں، بدبو بھی مار جاتے ہیں، مہک بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، پانی کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے۔ آب زمزم واحد وہ پانی ہے، ساری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے، پھر بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی لے جاؤ، اس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا اور اس کا کلر بھی چینج نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی ہے آب زمزم میں۔ اور یہ آب زمزم کیا ہے؟ آب زمزم کیا ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ کے صدقہ ہی تو ہے، اور انہی کے صدقے تو ہمیں یہ ملا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے تو ہمیں یہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کی شفا اس پانی کے اندر رکھ دی۔ کیسے آب زمزم کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، مشہور واقعہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئے جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہو اور نہ پینے کے لیے کچھ ہو، جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہو اور نہ پینے کے لیے کچھ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر بتائے اپنی وائف اور اپنے بیٹے کو لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ چلتے مکہ کی وادی میں پہنچتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ بیاباں ہی بیاباں ہے، دور تک نہ کچھ کھانے کو ہے اور نہ کوئی بستی ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پر اپنی بیوی کو اسماعیل علیہ السلام سپرد کرتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ پھر بھی نہیں بتایا، چل دیتے ہیں۔ اہلیہ آواز لگاتی ہیں پیچھے سے، اے اللہ کے بندے، ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کا حکم یہی ہے، میرے رب کا حکم یہی ہے۔ آج ہم اللہ کے کتنے حکم پامال کر رہے ہیں، ہم اللہ کے کتنے بڑے بڑے احکامات کو پامال کر رہے ہیں۔ ہم تو نماز کا حکم پورا کرنے کے لیے مسجد کی دوڑ نہیں لگاتے، اور ہم تو نماز کا حکم پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نہیں آتے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ اور وہاں دیکھو شیرخوار بچے ہے، اور نہ کوئی سایہ دار درخت ہے، اور نہ کوئی جگہ ہے سونے کی، اور نہ کوئی جگہ ہے بیٹھنے کی، اور نہ کوئی جگہ ہے کسی قسم کی آسائشوں کی، آسانیوں کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے، تو بی بی ہاجرہ سمجھ گئی کہ ہمیں یہیں رہنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ عورت تھی، سمجھ گئی، نبی کی بیوی تھی۔ آج کل کی بیویوں کو سارا کچھ کھانے کو بھی ملتا ہے، سب کچھ پہننے کو بھی ملتا ہے، رہنے کو بھی ساری چیزیں ہیں، اور پھر بھی ناشکری ہے۔ اور سب سے زیادہ ناشکری عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی ہے۔ آپ سے حالانکہ عورت کے جنت کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آسان سا عمل بتایا ہے کہ عورت یہ عمل کر لے، وہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت کی، صرف یہ عمل کر لے عورت۔ وہ کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دے، اور اپنے شوہر
की फर्मा बरदार बन जाए और मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और मेरा नबी कह रहा है मैं ऐसी औरत को जन्नत की ज़मानत देता हूँ। और कोई अमल नहीं है, दूसरा कोई अमल नहीं है, कोई अमल नहीं है। शौहर की फर्मा बरदारी, 5 वक़्त की नमाज, 5 वक़्त की नमाज, और समझो जन्नत उसको मिल गई। और जो शौहर की फर्मा बरदारी करे और 5 वक़्त की नमाज पढ़े, और जैसी औरत के लिए जन्नत का वादा है, ऐसी औरत के लिए जन्नत का वादा है, तो दुनिया में ही उसका घर जन्नत कैसे नहीं बन सकता? और दुनिया में ही उसका घर जन्नत कैसे नहीं बन सकता? दुनिया में ही उसका घर जन्नत बन सकता है। यहाँ शौहर घर में दाखिल बाद में होता है, पहले बीवी के तेवर जो है वो आसमान पर चढ़े हुए होते हैं। यहाँ शौहर बाहर धूप गर्मी मजदूरी से थका हारा घर पे आता है, बजाय इसके कि उसकी खिदमत की जाए, बजाय इसके कि उसकी फर्मा बरदारी की जाए, बजाय इसके कि उसके सामने उसकी बात को माना जाए, रखा जाए, ऊपर से उल्टा ही जवाब मिलता है सामने से। और सारा का सारा बाहर की थकन जितनी भी है वो सारी बंदे की डबल हो जाती है। तो बीबी हाजरा ने कहा कि हमें तो अब यहीं रहना पड़ेगा, समझ गई। अब छोटा बच्चा है, प्यास लगी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी। तो बीबी हाजरा ने क्या किया? दौड़ लगाई, सफ़ा से मरवा तक भागी। आजकल तो जो सफ़ा मरवा पर दौड़ लगाते हैं तो फर्श बना हुआ है, आसान है, बिल्कुल इजी है। उस वक़्त पत्थरीली ज़मीन, पत्थर, दौड़ लगाई सफ़ा से मरवा तक, वहाँ पहुँची, बच्चे का ख्याल आया, वापसी आई, फिर दौड़ लगाई, फिर वापसी आई, फिर दौड़ लगाई। 7 चक्कर बीबी हाजरा ने इस तरह लगाए। और मेरे रब को यह अमल इतना महबूब, और मेरे रब को यह अमल इतना पसंद आया कि मेरे अल्लाह ने रहते दुनिया तक इस अमल को जारी कर दिया, क़यामत तक इस अमल को जारी कर दिया। जो भी हज करने जाएगा, जो भी उम्रा करने जाएगा, सफ़ा मरवा पर चक्कर लगाएगा, दौड़ेगा। जब देखा कि पानी का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, बहुत सारी रिवायात हैं, बहुत सारे कहते हैं कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ लगी, ज़मीन पर पानी निकल आया। बहुत सारे कहते हैं कि हज़रत बीबी हाजरा ने ज़मीन को रगड़ा तो पानी निकल आया। बहरहाल जैसे भी पानी निकल आया तो बीबी हाजरा ने दुआ मांगी अल्लाह से, हाथ उठाए कि मेरा बच्चा प्यासा है, पानी का बंदोबस्त हो जाए। जिस तरह भी किया अल्लाह ताला ने वहाँ चश्मा जारी कर दिया, पानी का चश्मा जारी कर दिया। ओ जब बहने लगा तो बीबी हाजरा कहने लगी ज़मज़म, अबरानी ज़ुबान का गालिबन लफ्ज़ है ज़मज़म, रुक जा। तो वो चश्मा वहाँ पर रुक गया, ये आब ज़मज़म है, आज तक सारी दुनिया पी रही है, सारा जहान पी रहा है, लेकिन ना तो इस कुएं का ज़र्रा बराबर पानी कम हुआ और ना ही कभी इस कुएं का पानी जो है वो कभी ख़राब हुआ। तो हज के जितने भी मनासिक हैं ये सारे के सारे इन्हीं यादगार हस्तियों से ताल्लुक़ रखते हैं। बीबी हाजरा का वाक़या है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं, कितने बड़े बड़े वाक़यात हैं। कंकरियाँ मारने का शैतान को कंकरियाँ मारने का वाक़या है। छोटा बच्चा था, उस वक़्त भी हुक्म हुआ कि इसको वीरान जगह पर छोड़ दो। अब जब 12-13 साल का हुआ है, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया अपने बच्चे को ज़िबा करो। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया, ज़िबा करना है। एक रात ख्वाब आया, नहीं बताया बेटे को। दूसरी रात ख्वाब आया, नहीं बताया बेटे को। तीसरी रात फिर ख्वाब आया, कहने लगे इस्माइल अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, मेरे रब का हुक्म है। तो क्या कहा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बेटा भी तो बेटा है, और यहाँ भी तो तालीम है ना कि औलाद को कैसा होना चाहिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ए अब्बा जान, जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया गया है ना, आप कर गुजरें, आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे।
यहाँ देखो अल्लाह के हुक्म के सामने बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार हो गया। ये नहीं कहा बाप को कि जाओ अपने किसी और बेटे को ज़िबा कर दो, जाओ किसी और को ज़िबा कर दो, या मैं ज़िबा होने के लिए तैयार नहीं हूँ, या मैं क्यों कुर्बान हूँ, या मैं ही मिला हूँ अल्लाह को कुर्बान करने के लिए। जिस तरह के आजकल हमारे माशरे का दस्तूर बनता चला जा रहा है कि थोड़ी सी परेशानी आती है, थोड़ी सी मुसीबत आती है, थोड़ी सी अल्लाह ताला आजमाइश में मुब्तला करते हैं, वही रोना धोना सब कुछ शुरू हो जाता है। हाँ, आफियत मांगनी चाहिए, आफियत मांगनी चाहिए। मैं भी आफियत मांगता हूँ, मैं भी आजमाइश से पनाह मांगता हूँ। मेरे नबी का फरमान भी है कि आजमाइश से पनाह मांगो, अल्लाह ताला से आफियत मांगो। लेकिन अगर थोड़ी बहुत आ भी जाती है तकलीफ तो फिर सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आफियत वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए हर काम के अंदर, हर काम के अंदर। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ पर लब्बैक कहना, ये हर उस औलाद को तालीम है कि अपने वालिदैन के सामने किसी भी हुक्म के सामने आपने ना नहीं करना, लब्बैक कहना है, सिवाय शिरक के, सिवाय गुनाह के अमल के, कि उस पर आपने लब्बैक नहीं कहना। बाकी जो भी अमल है आपने लब्बैक कहना है। जी अब्बा जान, आपने कुछ कहा, आपने कुछ फरमाया, हुक्म करें, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ताला को ये अमल भी बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंद आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लेके जा रहे थे, रास्ते में शैतान आया। शैतान क्या कहने लगा कि एक ही तेरा बेटा है, तो इसको भी ज़िबा कर देगा, तो इसको भी ज़िबा कर देगा। जैसे आजकल हमारा ईमान ख़राब करते हैं ना शैतान, कि एक ही तो डाला है, ये एक ही तो क्या कहते हैं कि आपकी तिजारत का माल है, एक ही तो है कंटेनर, या एक ही तो है चीज़, इसको ले लो, इसको ले लो, उसके बाद तौबा कर लेना, तौबा कर लेना, तौबा के दरवाजे खुलें। ये गुनाह कर लो, उसके बाद नहीं करना, उसके बाद नहीं करना। तेरे पास है क्या, तू ये भी नहीं करेगा तो फिर तेरे पास बचेगा क्या। शैतान ये चीज़ें जहन में लेकर आता है, ये चीज़ें जहन में लेकर आता है। अल्लाह की ज़ात पर जो ईमान है उसको खोखला करता है, खोखला करता है। ओ नबी के पास शैतान आ गया, कह रहा है आकर एक ही तो तेरा बेटा है, तो इसको भी ज़िबा कर देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ उठाई और मारी, कहा मुर्दार दफ़ा हो जाए यहाँ से। अल्लाह ने मुझे सुमा बना दिया शैतान का वहीं, और दोबारा फिर आया, फिर भी नहीं मुड़ा। शैतान को पता था कि ये कितना बड़ा अमल है, फिर भी नहीं मुड़ा, फिर आया, फिर कंकरियाँ मारी, फिर भी नहीं मुड़ा, फिर आया, फिर कंकरियाँ मारी। और अल्लाह को यह अमल इतना महबूब हुआ, अल्लाह ने इसको भी क़यामत तक जारी कर दिया। अल्लाह अकबर, इसको भी क़यामत तक जारी कर दिया। फिर ज़िबा का अमल है, ज़िबा का अमल है, लौटा देते हैं, लौटा देते हैं। कोई बाप अपने बेटे को चमाट भी मारे ना तो थोड़ी देर के बाद सीने से लगा लेता है कि मैंने मारा अपने बेटे को, तकलीफ़ हुई मेरे बेटे को। वहाँ ज़िबा का हुक्म है, ज़िबा का हुक्म है। सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। औलादें हों तो ऐसी हों, वालिदैन हों तो ऐसे हों। यहाँ वालिदैन के मकाम को भी बताया गया है, यहाँ नबियों के मकाम को भी बताया गया है। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की गई है, यहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान की गई है, यहाँ बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम की शान को बयान किया गया है कि देखो देखो ये अल्लाह ताला के बंदे थे, ये अल्लाह ताला के बंदे थे, ये अल्लाह ताला की मान कर चलने वाले थे, अल्लाह को राज़ी करने वाले थे। अल्लाह ताला किस तरह इनके लिए दरवाज़े खोलते चले जाते थे। जैसा कि मेरे रब ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मेरी ज़ात से डरता है ना, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं उसके लिए रास्ते खोलता चला जाता हूँ, खोलता चला जाता हूँ, खोलता चला जाता हूँ। हाँ, जो मुझसे नहीं डरता उसके लिए तंगी ही तंगी है। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया कि मैं जो मुझसे डरता है मैं उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता हूँ कि उसके ज़हन व गुमान में भी नहीं होता। आ जाएँ कुर्बानी का अमल करने वाले जो साहिब इस्तिताअत हैं, कुर्बानी करें, कुर्बानी करें। जो हज करने की इस्तिताअत रखते हैं वो हज करें, और जो जितने भी नेक अमाल हैं, जो औलाद हैं वो अपने वालिदैन की फरमा बरदारी वाला काम करें, और जो वालिदैन हैं वो भी शफ़क़त वाला, रहमत वाला मामला फरमाए अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल